based also, and basically his experiences in building management services, and now he has ventured out on his own for this HVAC and its products. So let's automation is nowadays very important. Anything that is not having a automation, so is almost like a white elephant. So if we have proper automation and proper controls, then the system becomes more effective and it will consume less energy, and maintenance also is better. So let's listen from him about HVAC and basics of building automation systems and smart HVAC. First of all, thank you so much, each and everyone. You have come here by taking your precious time and investing your time to learn something new, which is untouched topic so far. And thank you so much, entire Ishre chapter, which has given me the opportunity to present this little bit insights about this automation system. So today's topic is the branch of building management system, which is building automation. So earlier we have just featured in thermal control business maxim. So because of that, I have got little bit courage to present something new and untouched topic in front of you. The people like expertise have the different line of businesses. So hence I'm come here and let's see and deep down into the world of automation. So this is a set of topics in which we will see first of all the introduction to the building automation system. Then we see the legend. मेरे ख्याल से किसी भी एक टॉपिक को समझने के लिए उसमें कंप्राइजेस ऑफ अल्फाबेट समझना बहुत ज़रूरी है. लाइक लेजेंड्स कि किस सिस्टम का एब्रीविएशन क्या है या फिर शॉर्ट फॉर्म्स एंड लॉन्ग फॉर्म्स ये क्या है, उसमें हम देखेंगे लेजेंड में. उसके बाद हम देखेंगे कि BMS आर्किटेक्चर. सो हाउ द BMS आर्किटेक्चर विल एक्ट and give the control from controller side to the field side and vice versa. Later on we'll see the components of BAS in HVAC. किन किन components से ये entire BMS system काम करता है, like hardware, software and then protocols, we can say that. उसके बाद हम देखेंगे communication network, that is the main heart of the system, so by which the system can communicate with each other. लेटर हम देखेंगे कंट्रोल स्ट्रैटेजीज, किन स्ट्रैटेजीज से हम एंटायर सिस्टम्स को वर्क कर सकते इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली. उस कंट्रोल स्ट्रैटेजी को और डिटेल में जब हम समझना चाहेंगे तो हम देखेंगे कंट्रोल लूप्स, डिफरेंट कंट्रोल लूप्स क्या है. उसके बाद हम देखेंगे एंटायर पॉइंट शेड्यूल एंड एंटायर सिलेक्शन ऑफ हार्डवेयर एंड विल सी the activity, because activity I have planned the activity with the reference of multiple people. So let's see कि वो हम complete कर सकते हैं या नहीं. And then in the end we'll get to know about the recap, how we have learned and how we can summarize the entire BMS system. So let's begin with the introduction. So everyone, can you tell me what is the automation in your way? Sir, can you tell me the automation in your way? What is automation? Automation is something without the manual intervention. If something is synced, if it yields output, Okay. after programming it Okay. on its own and without human intervention, Okay. if it flows, that is called automation. Yeah, definitely, sir. In your way, sir, ma'am. Any other definition or the It's a abbreviation? better way of controlling, I mean, without any person intervention. Yeah, definitely. So by getting the inputs, definitely it is the process of completing a particular task or the operation by its own without minimum human intervention.
So there will be a no need of human or the minimum need of human intervention. So that is called a basic automation. Now what we'll see, what is the building automation? So building automation में क्या होता है कि building automation is just a branch. मतलब entire अगर एक building है हमारे पास में, वहाँ पे different utilities है, like HVAC है, lighting है, access control है. So these utilities have their own protocol, their own controllers, their own sensors, their own facility managers. तो ये building automation system क्या करता है? ये act like a brain and gather each and everybody like a family and takes care of that. कि उसको कैसे हम communicate कर सकते हैं, कैसे monitor कर सकते हैं, कैसे control कर सकते हैं. So that is main building automation system. अब उसमें का एक छोटा सा पार्ट अगर मैं लूँ तो उसे हम कहेंगे बिल्डिंग ऑटोमेशन, जिस पे हम फोकस कर रहे हैं आज हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में. सो इन दिस बिल्डिंग ऑटोमेशन वी कैन मॉनिटर एंड कंट्रोल एंटायर यूटिलिटीज which can be seen on the screen like lighting, fire alarm system, fire fighting system, security and so on. So this is the main function of building management system. Now let's see the legend. So now the point type. So you may have seen the point type on the screen. ये पूरा जो ऑटोमेशन सिस्टम है या फिर दुनिया का कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम है, वो जस्ट टू टाइप्स ऑफ पॉइंट पे वर्क करता है, लाइक एनालॉग एंड डिजिटल. नाउ व्हाट डज इट मीन बाय एनालॉग? एनालॉग का मतलब क्या है कि इफ पर्टिकुलर क्वांटिटी ये चेंज करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एनालॉग. एंड इफ डिजिटल, जो कि ओनली मॉड्यूलेट करेगा इन टू स्टेट्स, ईदर 0 और 1, दैट विल बी कॉल्ड एज अ डिजिटल. सो एंटायर digital world or the automation world has been comprised in just two signal types, analog and digital. So like we are seeing the point types here. A for analog, here is not apple. So in building automation, A for analog, B for binary. Okay ma'am? Okay. Analog, binary. Later on आप देख रहे होंगे कि I and O. So I for input, absolutely correct, and then O for output. So now how can we abbreviate the entire couple of alphabets? Analog input, Absolutely right, analog output, correct. binary input, Binary input, correct. binary output. Binary output, correct. Okay. सो ये एब्रिविएशन समझ गए. उसके बाद हमारे पास में है UI एंड CO. सो कभी हमारे पास ये दो पॉइंट टाइप है. अब जब मैं UI एंड CO की बात करता हूं, सो U मीन्स यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल इनपुट, क्योंकि I लगा है आगे. देन C फॉर configurable. Okay. So that is configurable output. अब AIO BIBO तो आपको समझ गया क्या है, लेकिन जब हम UI देखते हैं, सो कभी कभी क्या होता है कि पॉइंट टाइप्स को हमारे पास इनपुट्स होना बहुत जरूरी होता है. कि जैसे कि हमारे पास में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स है कंट्रोलर में, लेकिन उसके बाद हमारे पास में AI एंड BI का कोई प्रोविजन नहीं है. उस टाइम पे हम ये UI यूटिलाइज करते हैं डिपेंडिंग ऑन दी फील्ड टाइप्स. लाइक मैं उसको यूनिवर्सल इनपुट्स को एज अ AI भी कंसीडर कर सकता हूँ और BI भी कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है. दैट इज फॉर इनपुट्स. एंड सिमिलरली कॉन्फ़िगरेबल आउटपुट क्या है कि मैं उस आउटपुट को डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन में कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, लाइक whether it is analog, whether it is digital or any other soft point. So that is the summarization of point types. यहाँ तक ये clear है सब? Once again, can you please explain universal input and configurable output. Okay. So अगर ये मेरा कंट्रोलर है,
यहाँ पे AI, AO, BI, BO तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट? लेट्स से वी नीड टू मॉनिटर 5 AI points, 3 BI points and 2 BO points, 1 AO point. ठीक है, अब मेरे पास में AI and BI that is inputs, ये टोटल काउंट कितना हो गया है? 8. ठीक है, इस कंट्रोलर का जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम स्पेसिफिकेशन है. 5 AI मॉनिटर कर सकता है, 3 BI मॉनिटर कर सकता है और 2 UI, 3 BO. हम इसकी भी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इनपुट की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो अगर ये 8 अगर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ काउंट है इनपुट का, सिमिलरली काउंट है कंट्रोलर का, तो अगर इन केस मुझे और कोई इनपुट लेना है कहीं से, मतलब एक फील्ड कंट्रोलर है, फील्ड डिवाइस है लाइक, और एक एक्स्ट्रा का किसी ने कस्टमर ने रेट्रोफिट में ऐड करने को बोला है कि मुझे और एक टेम्परेचर सेंसर मॉनिटर करना है मेरे पास, तो आई एम रन आउट ऑफ एंटायर क्वांटिटी, राइट? So what we can say that in that case we can utilize this universal input either AI or BI. So that is the meaning of universal input. Similarly, configurable output. If I am run out of the entire quantity point count, उस टाइम पे मैं इस configurable output को either BI में configure कर सकता हूँ और AI में कर सकता हूँ. Right? Clear? नाउ फर्स्ट नंबर हम देखेंगे कि हार्ड पॉइंट्स क्या है, सॉफ्ट पॉइंट क्या है. सो हार्ड पॉइंट मतलब जब भी किसी सेंसर्स को या फिर फील्ड डिवाइसेस को वायर से हम कनेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं हार्ड पॉइंट. सेकंड नंबर पे है सॉफ्ट पॉइंट. अगर मुझे कोई अलार्म जनरेट करना है या फिर कोई एक मल्टी वेरिएबल स्टेट जनरेट करना है जिसका किसी भी वायर से कोई लेना देना नहीं, कोई रिलेशन नहीं, उसे हम कहेंगे सॉफ्ट पॉइंट. लाइक सेट पॉइंट, राइट? सेट पॉइंट हम किसी भी वायर से कनेक्ट नहीं करते, इट इज अ कॉन्फ़िगरेशन, हमने कंट्रोलर में कॉन्फ़िगर किया हुआ, इसलिए हम इसको सॉफ्ट पॉइंट बोलते हैं. बाकी हार्ड पॉइंट हम उसे कह सकते हैं means whatever that is programmed, whatever it is programmed, that is called as soft point. Then feedback. अब feedback क्या होता है? अब किसी कंट्रोलर से मैं किसी सप्लाई फैन को या फिर किसी एक्चुएटर को कोई कमांड कर रहा हूँ, लाइक एक एक्चुएटर है उसको मैंने 30% का कमांड कर दिया है, और जब वो एक्चुएटर ऑन है या ऑन ऑफ है वो मुझे चेक करना है, तो वो फिर से सिग्नल भेजेगा कंट्रोलर के तरफ, उसे हम कहेंगे फीडबैक. देन हम कमांड. I have a question here. Okay. The status also comes under soft points only, no? No sir, no, because एक वॉल एक्चुएटर है, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर से मैं एक आउटपुट दे रहा हूं जो जाएगा वॉल को. सिमिलरली यहां से मुझे एक वायर लेनी पड़ती है जो कि मैं कंट्रोलर को दूंगा फीडबैक. सो फीडबैक एंड स्टेटस बोथ आर द सेम, बट दैट विल डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट टाइम. अब फीडबैक मैं कब यू बोल रहा हूं कि जब कोई सिस्टम एनालॉगसली मुझे सिग्नल देता है उसे मैं कहूंगा फीडबैक. Okay, if it is analog, right, if it is analog we can say that the feedback, and suppose if it is digital then it is status. Got it. Okay, so set points मैंने explain कर दिया है already. उसके बाद अब देखेंगे system enable और disable, that is again the soft command. Later on override यानी क्या है, ये भी एक सॉफ्ट कमांड ही है जिससे कि हम किसी सिस्टम को फोर्सफुली उस कंडीशन में ऑपरेट करने के लिए रखते हैं. सो दैट इज कॉल्ड एज ओवरराइड. IO list,
IO लिस्ट मीन्स जब किसी एंटायर लिस्ट को मैं समराइज करता हूं, जैसे कि इनपुट है, आउटपुट है, कॉन्फ़िगरेबल इनपुट है, यूनिवर्सल इनपुट है, उन सभी लिस्ट को मैं IO लिस्ट बोलता हूं, ठीक है। उसके बाद SARA OA EA मीन्स सप्लायर, रिटर्न एयर, आउटसाइड एयर, एग्जॉस्ट एयर, मॉड्यूलेटिंग। अब मॉड्यूलेटिंग पे आते हैं। अब मॉड्यूलेटिंग क्या है कि फिर से एनालॉग आउटपुट, मॉड्यूलेटिंग मतलब मॉड्यूलेट करेगा, सो इट विल नॉट बी ईदर 0 और 1, वो डिजिटल नहीं है, या तो मैं 30% पे कर सकता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम में इसको चेंज कर सकता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटिंग। वैरी करते रहेगा, लाइक डैम्पर, लाइक एक्चुएटर। देन ऑन ऑफ, जैसे मैं सप्लाई फैन को ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, डिजिटल। HOA हैंड ऑफ ऑटो, मतलब किसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर पैनल पे एक स्विच होता है जिसमें मैं हैंड पोजीशन पे उसको चालू कर सकता हूँ, हैंड एंड मैनुअल विद इट विल बी ऑन ऑफ और ऑटो। अगर मैंने वहां से ऑटो कर दिया तो BMS विल टेक केयर ऑफ एंटायर कमांड एंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। उसके बाद मिसमैच अलार्म। सो व्हाट इज मिसमैच अलार्म? सो इन केस ऑफ सप्लाई फैन, जब मैं कमांड देता हूं टू कमांड द सप्लाई फैन टू स्टार्ट, और सप्लाई फैन विद इन पर्टिकुलर सेकेंड्स वो स्टेटस नहीं देगा, सो दैट विल बी एक्चुअली मिसमैच हो रहा है दोनों में। मैंने कमांड दिया तो वो स्टेटस भी होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो सिस्टम विल जनरेट द मिसमैच अलार्म। और बहुत बार आपका इनपुट ही अगर नहीं जा रहा है तो अगेन it will again alarm, that will alarm generating situation. Okay. So that will not called as a mismatch alarm. Okay. That is again fault alarm, supply fan fault alarm, you can say that. High limit and low limit, if the pressure we are measuring, that will be goes on the high limit or the low limit. Supervisory. Now supervisory, DDC, IO module, field devices and trunk, that is all related to the hardware selection. क्योंकि मैं सिस्टम तो बना रहा हूँ, उसके लिए हार्डवेयर भी सिलेक्ट करना होगा। So what is supervisory? Supervisory means supervise करेगा। It is the boss of the entire system. Is it a controller? It is the controller. It is related to the controller. Supervisory controller. Then DDC, direct digital control. उसके बाद हम देखेंगे IO मॉड्यूल। What is the function of DDC? DDC मतलब डेडिकेटेड कंट्रोल पैनल होगा। मतलब अगर मैंने I have building, I have 10 number of AHUs, one chill water system, so each and every system will be integrated into the dedicated digital control panel, that is called as direct digital control. It will be the father of all these controllers. Yes, absolutely. Okay. Now IO module. IO module फिर से can you relate IO module? Same like controller only. Exactly. Inputs and outputs. Inputs and output. ये IO module हम कब यूज करेंगे? जब कंट्रोलर की कैपेसिटी रन हो गई है। Okay. So by depending on the situation, pocket money, मैं एक IO module लूंगा और दो अगर पॉइंट मुझे मॉनिटर करना है तो जस्ट वो IO module एक्सटेंशन के लिए मैं ऐड कर दूंगा। So that is called as IO module. Means it's an expanded मेमोरी बोल सकते हो या फिर Controller. कंट्रोलर का एक पार्ट बोल सकते हो आप। So that is IO module. Field devices. Field devices मतलब temperature sensor. टेम्परेचर सेंसर, ईच एंड एवरी एक्चुएटर जो कि फील्ड में काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज फील्ड डिवाइसेस। उसके बाद में ट्रंक। सो ट्रंक क्या है कि Is it set of cables or something? यस सो मतलब अगर एक सुपरवाइजरी डिवाइस है मेरा तो उस पे जब मैं किसी वायर से नंबर ऑफ मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करूंगा, सो ये जो वायर्स रहेंगे उसको मैं बोलूंगा ट्रंक। सो इट हैज अ पर्टिकुलर कैपेसिटी डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड टू ब्रांड। जॉनसन कंट्रोल का अलग कैपेसिटी है, हनीवेल का, सीमेंस का, हर किसी ब्रांड का एक कैपेसिटी है, उसे हम कहते हैं ट्रंक, जिसपे हम डिवाइसेस एंड कंट्रोलर्स कनेक्ट करते हैं। उसको उसका स्पेसिफिकेशन क्या बॉड रेट के हिसाब से होता है? बॉड रेट के हिसाब से होता है। इफ अगेन इसमें अगर वन ब्रांड के हम एंटायर फैमिली कनेक्ट करते हैं तो उनका बॉड रेट जो है वो वैरी करेगा, उस पर नंबर ऑफ
डिवाइसेस हम ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो बॉड रेट उसका फिर कम हो जाता है बिकॉज कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस, तो उससे हमारा कम्युनिकेशन का टर्न का जो लेंथ है कम हो जाता है। सो दैट इज रिलेटेड टू एंटायर लेजेंड। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के पास में आते हैं। जब भी कभी एक ड्राइंग हमारे पास में आती है तो ये नंबर ऑफ जो सेंसर के टाइप्स है वो आपको दिखेंगे एक ड्राइंग पे। जैसे कि टी है, उसके टी मतलब टेम्परेचर सेंसर, RH मींस RS सेंसर। इट इज प्रीटी सिंपल as described as, right? इस एंटायर स्क्रीन का मतलब अगर मैं कुछ टिप देना चाहूँ आपको तो बीच बीच में आपको एक टिप दूंगा बेसिकली, उसे मैं रिलेट कर रहा हूँ मेरे वेली ज्ञान से। तो इस फ्रेम का, इस एंटायर स्क्रीन का विज्ञान ये है कि इनपुट एंड आउटपुट किसको बोलते हैं। सो इनपुट किसको बोलेंगे हम लोग? Whatever the information that we feed. Feed in, from feed to the controller, that is called as input, और आउटपुट किसको हम बोलेंगे? कंट्रोलर टू फील्ड, वाइस वर्सा। बस इतना ध्यान में रखना है इस एंटायर स्क्रीन में। Just to summarize, as I was late, what are the full forms of those AI, AO, BI, BO, UI, CO? Universal and that Configure and you know, right? That I- So A for analog, Okay. B for binary, I for input, and O for output. Now you can correlate. Yeah. Analog input, analog output, binary input and binary output. Now we'll see the architecture of BMS. So it has 3 levels, जिसमें कि पहला मैनेजमेंट लेवल है, दूसरा ऑटोमेशन लेवल है, एंड थर्ड लेवल इज फील्ड डिवाइस लेवल। सो इन मैनेजमेंट लेवल हमारा जितना भी सर्वर होगा, एक वर्क स्टेशन होगा या फिर एक यूजर इंटरफेस होगा जहाँ पे एक BMS रूम में बैठ के मैं एंटायर बिल्डिंग को कंट्रोल कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ, मॉनिटर कर सकता हूँ। सो दैट इज माय मैनेजमेंट लेवल। सो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रहेगा, किसी HU को मुझे ऑन करना है, ऑफ करना है, मैं इस ग्राफिक्स से कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये है मेरा मैनेजमेंट लेवल, जिसमें कि एंटायर हार्डवेयर रहेगा रिलेटेड टू एंटायर कंप्यूटर्स एंड सर्वर्स Through manual intervention. through manual intervention. Now we come to the second level. That will be done once, मतलब जैसे settings करना है Right. तभी होगा ना वो use. Yes, madam. Not on a Yes. regular Or else basis. to override. No. There is no need to override. अगर मतलब मान लीजिए it is as good as your mobile phone. आप मोबाइल फोन पे क्या करते हो कि किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, राइट? बट दैट इज वायरलेस। अब आप अपने मोबाइल फोन को किसी प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दो विथ वायर फॉर एग्जांपल, तो मोबाइल फोन हो गया आपका मैनेजमेंट लेवल जहाँ से आप कंट्रोल करोगे, एंड प्रिंटर हो गया आपका फील्ड डिवाइसेस जो नीचे का लेवल है। सिंपल, ओके। नाउ ऑटोमेशन लेवल। अब ऑटोमेशन लेवल में कैसा है कि जैसे मैंने आपको डिस्क्राइब किया था। Sir, sorry to interrupt here. ओके सर। What is that Ethernet? Ethernet. Ethernet is a type of protocol. केबल रहेगा। Okay. एक मेथड है प्रोटोकॉल का जिससे सिग्नल ट्रांसफर होता है, उसे हम कहते हैं कि ईथरनेट। वो हम लोग जो नेटवर्क के लिए जो यूज करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क। सो दैट इज कॉल्ड एज ईथरनेट। तो सबसे पहले ऑटोमेशन लेवल में देखते हैं सुपरवाइजरी, ठीक है। उसके बाद में ये सुपरवाइजरी जो कनेक्टेड होते हैं, नंबर ऑफ DDC पैनल्स को कनेक्ट होते हैं। DDC panels, I have already given you the insights what the DDC panel does. Okay. So like अगर कोई HU नंबर 1 है, HU1 है, यहाँ पे CHWS है, मतलब चिल वाटर सिस्टम है, या फिर यहाँ पे कोई FCU सिस्टम है, या फिर यहाँ पे फिर से कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन है, तो ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के लिए ये कंट्रोल होगा जिसको मैं बोलूंगा DDC कंट्रोल पैनल, ये अगेन DDC, all these are DDC. Now ये DDC जो है वो DDC अगेन नंबर ऑफ फील्ड डिवाइसेस से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि सेंसर हो गया,
एक्चुएटर, डैम्पर एंड सो ऑन। सो इसमें क्या होता है कि इस ऑटोमेशन लेवल में हम सभी चीजों को ऑटोमेट करते हैं, जिससे कि सेंसर कनेक्टेड रहेगा एक डीडीसी कंट्रोलर से। मतलब एक एचयू का कोई सेंसर है, कोई एचयू है, उससे फील्ड डिवाइसेस जितने भी सेंसर्स है वो कनेक्टेड रहेंगे उस डीडीसी कंट्रोलर से। वो डीडीसी कंट्रोलर कनेक्ट करेगा सुपरवाइजरी। सो सुपरवाइजरी विल गिव कमांड टू पर्टिकुलर डीडीसी पैनल, then DDC panel will again pass this command to the field controllers, field devices, sorry. So that will be the communication method from up to down and down to up, vice versa. If I am not wrong, Mhm. if I put it this way, Mhm. the sensor will sense the temperature Right, at real time, right, right? right, And then it will pass on the feedback to the DDC. right, The DDC will pass on the signal to supervisory. Supervisory will decide. right. Supervise what to do. Yeah, and accordingly it will give the signal to the actuator. Exactly, exactly. Same. Right. Means You're- my knowledge on it is okay. Okay, sir. Okay. More than okay. So I'm just trying to. Right. So this is the levels of the architecture. अब इस entire screen का एक विज्ञान क्या है? So जैसे मैंने बोला कि different sensors and different system work करता है different protocols पे. So here we'll thoroughly discuss about the BACnet protocol because it is the own protocol by the ASHRAE standard for the building automation. So यहाँ पे अगर एक BACnet प्रोटोकॉल है जो कि ओपन प्रोटोकॉल है, LonWorks है, Modbus है, but no one uses the Modbus and LonWorks. Everybody is using the BACnet. BACnet में भी two types of protocols है, that is BACnet IP and other is BACnet MSTP. अगर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना है फ्रॉम डाउन लेवल टू अप, सो ईदर में मुझे एक ही टाइप का प्रोटोकॉल चाहिए, राइट? बट ईच एंड एवरी कंपनी फॉलोज डिफरेंट प्रोटोकॉल्स टू कम्युनिकेट, राइट? कोई बैकनेट एमएसटीपी करेगा, कोई बैकनेट आईपी करेगा। सो इन दोनों का कम्युनिकेशन में कैसे कराऊंगा, विच इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज अ ट्रांसलेटर, राइट? तो मैं कम्युनिकेशन कैसे कराऊंगा कि इन दोनों प्रोटोकॉल के बीच में मैं एक ऐसा डिवाइस लगाता हूं जो कि इस प्रोटोकॉल का सिग्नल इस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेगा एंड वाइस वर्सा अगेन, अगर इस प्रोटोकॉल का सिग्नल है इस प्रोटोकॉल में कन्वर्ट करेगा। सो दिस डिवाइस इज कॉल्ड एज राउटर। This device is called as router and it will convert the entire protocol or the language into the one language so that the system will communicate effectively. In the same manner, analog input can be, read by the supervisory. Accordingly, Yes. decision made, and the output can be given on digital Yes, yes, through that backend router. yes, yes. BACnet router just एक ट्रांसलेटर है। मतलब ऐसा क्या हो रहा है, एक फिर से एक थोड़ा सा एक इंसाइट समझते हैं हाउ डज द प्रोटोकॉल वर्क, ठीक है? मतलब एक छोटा सा इंसाइट्स आपको मैं देता हूँ कि क्या करता है हमारा राउटर। BACnet IP कोई एक सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर है BACnet IP पे। एक मेरा डीडीसी कंट्रोलर है BACnet MSTP पे। BACnet MSTP is a type of serial protocol जिसको हम ऑलरेडी बोलते हैं RS485. You may have heard about it, I think RS485. So RS485 में क्या होता है कि सीरियल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक के पीछे एक बीट्स चलते रहते हैं एंड कम्युनिकेशन होता है। आईपी में क्या होता है, पैरेलल बीट्स चलते हैं, मतलब एट ए टाइम बंच ऑफ बीट्स जाएंगे। अगर बंच ऑफ बीट्स यहाँ पे एट ए टाइम जाएंगे, मतलब 1 1 1 1, ये 4 बंच ऑफ बीट्स जाएंगे तो ये तो सीरियल है, ये पैरेलल है, तो कौन सा बीट कैसा यहाँ पे रीड करेगा। सो दिस राउटर विल कन्वर्ट दिस पैरेलल बीट टू द सीरियल बीट। So it is nothing but your parallel digital convert to serial digital converter, we can say, or vice versa. So ये तो अभी BACnet की हम बात कर रहे हैं। Similarly मान लीजिए कि मेरा टेम्परेचर सेंसर है BACnet IP पे और मेरा DDC कंट्रोलर है LonWorks पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? Can anybody tell me?
6-7 वर्षात? नाही सर काहीच माहिती नाही. ओके. जैसा कि मैंने सांगितलं, मैंने जैसे बताया कि ये एक राउटर में कनेक्ट कर रहा हूँ दोनों को सिनर्जी फॉर्म करने के लिए. सो इट विल टेक केयर ऑफ दैट. अगर कोई हिंदी बोल रहा है, कोई इंग्लिश बोल रहा है, तो मैं ट्रांसलेटर हूँ, मुझे हिंदी भी समझ में आती है और इंग्लिश भी समझ में आती है. वैसे ही जब अगर कोई टेम्परेचर मेरा आईपी बेस्ड है, मतलब बैकनेट आईपी है, मतलब हिंदी है, और कोई मेरा लॉन वर्क मतलब मेरा डीडीसी कोई अंग्रेजी बोलने वाला है, तो मैं ट्रांसलेटर रखूंगा जिसको आईपी भी समझता है, मतलब हिंदी भी समझता है, और लॉन वर्क मतलब इंग्लिश भी समझता है. And that translator is router. And that translator is called as router. So this is the role of router. Okay, so this is entire hierarchy or the architecture of BMS. We can say that. Now the components of BS or BMS system. हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्किंग प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल के बारे में अभी मैंने बताया आपको, जस्ट स्टार्ट किया था. सो लिटिल बिट इनसाइट्स. सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर में डिस्कस करता हूँ. सो डीडीसी, डायरेक्ट डिजिटल कंट्रोलर, आईओ मॉड्यूल, सेंसर, एक्चुएटर, डैम्पर, ये ऑलरेडी हमने एक थोरली हमने देखा है कैसा है. इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इन नेक्स्ट स्लाइड. Sir, just one second. Yes, sir. Let's go back. HMI, human machine interface. Interface. What is this? So buttons. ह्यूमन मशीन इंटरफेस, HMI. अब ये HMI क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, लाइक एंड्रॉइड. आपके पास में एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड के बेस में मोबाइल कॉन्फ़िगर हुआ है, सब यूजर इंटरफेस कॉन्फ़िगर हुआ है. एंटायर मोबाइल इज वर्किंग ऑन एंड्रॉइड. तो इस बिल्डिंग ऑटोमेशन में जो बेसिक लेवल का एक प्लेटफॉर्म था वो था ह्यूमन मशीन इंटरफेस, दैट इज HMI जिसको हम बोलते हैं. उस प्लेटफॉर्म पे हम क्या कर सकते हैं कि एंटायर सिस्टम को ऑटोमाइज कर, मतलब सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस कर सकते हैं. मतलब अगर मैं मोबाइल खोलूँ तो मेरे पास डिफरेंट जो एप्स दिखते हैं वो मैं सेम वे HDC में कर सकता हूँ HMI में. सो आप ध्यान रखिए, कोरिलेट करिए. HMI is the Android of building management system. As simple as that again. So next slide, we have a sensors: temperature sensor, CO2 sensor, humidity sensor, differential pressure transducer and differential pressure switch. तो सबसे पहले अगर मैं किसी सेंसर्स को जानना चाहूँ एंटायर HVAC में, सो दे हैव द क्रूशियल रोल, जिसे मैं कहूँगा कि जो सेंसर है और एंटायर जो डिवाइसेस आप देख रहे हो, दैट इज नथिंग बट अ ट्रांसड्यूसर. ट्रांसड्यूसर का काम क्या है? टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर. अब मैं अगर टेम्परेचर सेंसर बोलता हूँ तो टेम्परेचर सेंसर क्या करता है कि फिजिकल, अगेन इट इज फिजिकल क्वांटिटी. टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर, then relative humidity, all these are the physical quantities. तो ये physical quantities को sense करते हैं और convert करते हैं electrical signal में. ठीक है? तो temperature sensor में 3 types है, जैसे कि RTD है, resistance temperature detector, thermistor and thermocouple. अब thermocouple जो है वो entire industry level पे use होता है, जहाँ पे biggest applications है. और जब मैं RTD और थर्मिस्टर की मैं बात करूं तो ये जो दो टाइप के जो टेम्परेचर सेंसर है वो हम हमारे HVAC में यूज करते हैं. अगेन इन RTD जो कि टेम्परेचर को सेंस करेगा एंड आउटपुट देगा इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस इंक्रीज और वाइस वर्सा. इस RTD में अगेन 2 टाइप्स है, दैट इज PT, that means platinum, and Ni, that is nickel. Most of the time, most of the brands, most of the companies following the platinum. क्यों? क्योंकि उसका accuracy ज़्यादा है, reliability ज़्यादा है, and sensibility ज़्यादा है. So this is the main selection criteria while choosing any sensor or actuator. सो टेम्परेचर सेंसर हो गया जिसमें हम सप्लाई टेम्परेचर, रिटर्न एयर टेम्परेचर, मिक्स्ड एयर टेम्परेचर, जोन टेम्परेचर, ये एंटायर फैमिली हम कवर कर सकते हैं, हम सेंस कर सकते हैं टेम्परेचर सेंसर. सिमिलरली CO2 सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर है. मैं थोड़ा सा इंसाइट इसके बारे में भी दे दूं.
CO2 सेंसर, अब CO2 सेंसर में क्या होता है कि not every sensor is energized by the power. There are two main basic types, that is active sensors and passive sensors. Anybody knows active किसको कहते हैं और passive किसको कहते हैं? Anybody knows? मैम? नहीं. Okay. So ध्यान रखिएगा, just a simple, अभी मैं बहुत सिंपल करके बता रहा हूँ क्योंकि एंटायर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली ये फील्ड, तो उसको कैसे सिंपल किया जा सकता है उस सिंपल वे में ट्राई कर रहा हूँ बताने का. सो एक्टिव सेंसर्स क्या है? जिसमें पावर सप्लाई इनबिल्ट होता है, ठीक है, इनबिल्ट होता है जिसको पावर देने की जरूरत नहीं. और पैसिव सेंसर क्या है? जिसको पावर देने की जरूरत है. ऑल द टेम्परेचर सेंसर्स आर एक्टिव सेंसर्स. थर्मामीटर इज एन एक्टिव सेंसर. एक्टिव सेंसर आपने कभी देखा है कि उसको मैं पावर दे रहा हूँ और उसके बाद में सेंसर कर रहा है? नहीं, बस कनेक्ट करना पड़ता है एक वायर, वो अपने आप सेंस करेगा, देगा. सो उसके अंदर में बैटरी इनबिल्ट होती है. सो पावर सप्लाई इनबिल्ट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव सेंसर. सिमिलरली अब जब मैं नीचे के जितने सेंसर्स आता हूँ दे आर दी पैसिव सेंसर्स. इन सभी सेंसर्स को पावर अप करने के लिए पावर लगती है. अब ये ऐसा क्यों है? आप क्वेश्चन शायद पूछेंगे, सभी तो टेम्परेचर सेंसर एक्टिव है, ये क्यों नहीं एक्टिव है ना? ये सौतेला व्यवहार क्यों हुआ है? ये सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? तो ये जितने भी नंबर ऑफ सेंसर्स है नीचे जो दिख रहे हैं, जो कि CO2 है, प्रेशर सेंसर, ह्यूमिडिटी, इनको पावर ज्यादा लगता है फ्रॉम वन क्वांटिटी कन्वर्ट करने के लिए टू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में. तो इसीलिए मैं इतना बड़ा बैटरी वहां नहीं लगा सकता. टू रिड्यूस द साइज मैं इसको भी एक्टिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो सेंसर का साइज इतना बड़ा करना पड़ेगा. सो दैट इज नॉट डिजायरेबल, राइट? सो क्या कर दिया है हमने, सम सेंसर्स को डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन, फिजिकल क्वांटिटी एंड एक्यूरेसी उनको पैसिव बना दिया है, सो दैट टू मेंटेन द ईज, एस्थेटिक, सेंसिंग. तो इन सभी सेंसर्स को पावर अप करने के लिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव लगता है, और दे विल सेंड द फीडबैक सिग्नल, कंट्रोल सिग्नल, ठीक है. सिमिलरली इन एक्चुएटर्स, डैम्पर एंड वॉल्स को एक्चुएट करने के लिए दो तरीके के एक्चुएटर है. यहाँ पे सेंसर के बारे में ईच एंड एवरीबॉडी अवेयर ऑफ दैट, ठीक है. अब मैं एक्चुएटर के पास में आ रहा हूँ, है ना. ये सभी चीजों को थोड़ा फोकस से सुनिएगा, ठीक है. एक्चुएटर एंड डैम्पर के बाजू में आप देख रहे होंगे कि ऑन ऑफ है एंड प्रोपोर्शनल है. सो डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेशन हम कोई वॉल्स यूज करने पड़ते हैं. सो ऑन ऑफ कौन सा सिग्नल टाइप? डिजिटल. और प्रोपोर्शनल मैम? प्रोपोर्शनल मींस एनालॉग. प्रोपोर्ट करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट. तो कभी कभी क्या होता है कि मुझे सिर्फ ऐसा HU डिजाइन करना है, ऐसा कोई सिस्टम डिजाइन करना है जिसमें सिर्फ मुझे ऑन एंड ऑफ करना है, तो मैं ये ऑन एंड ऑफ टाइप के वॉल्व यूज करूंगा, राइट. लाइक फायर डैम्पर्स. फायर डैम्पर्स, आग आग लगी बस ऑन करना है, मॉड्यूलेट नहीं करना है, दिया बंद करना है. मॉड्यूलेट करते रहेंगे तो आग लग जाएगी, राइट. सिमिलरली मेरा वॉल्स एंड डैम्पर्स के लिए अगर मिक्स्ड एयर है, एग्जॉस्ट एयर है, आउटसाइड एयर है, मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ डायरेक्टली. लेकिन मिक्स करना है तो मिक्स के लिए ऑन ऑफ नहीं चलेगा, थोड़ा सा रेगुलेट करना जरूरी है, तो उसके लिए मैं मॉड्यूलेटिंग डैम्पर यूज करूँगा. सो दैट इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटिंग डैम्पर, राइट. अब इस एंटायर स्क्रीन का मीडियन क्या है कि एंटायर सेंसर्स वर्क्स ऑन 24 वोल्ट AC/DC. मैं AC भी दे सकता हूँ और DC भी दे सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है उनको. और ईच एंड एवरी सेंसर विल गिव यू द आउटपुट, मींस इनपुट. सेंसर जो देगा वो आउटपुट देगा, वो तो उसके तरफ से जो देगा वो आउटपुट देगा. लेकिन मैं कंट्रोलर हूं, मैं लूंगा तो मैं इनपुट लूंगा. रिसीवर है, मैं इनपुट लूंगा, ठीक है. तो जो भी सेंसर है वो आउटपुट देगा, इधर 0 to 20 मिली एम्पियर का आउटपुट देगा, और 4 to 24 मिली एम्पियर का आउटपुट देगा, और 0 to 10 वोल्ट VDC देगा. VAC नहीं देगा यहाँ पे, DC, ओनली स्ट्रिक्टली DC. इनपुट DC AC कुछ भी चलता है, और आउटपुट DC देगा, या फिर करंट में देगा तो मिली एम्पियर में देगा, ठीक है. बाय डिफॉल्ट कुछ भी हो जाए ये मिली एम्पियर में देगा, ठीक है.
अब यहाँ पे नीचे में सिलेक्शन ऑफ सेंसर्स मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा कवर करा, एक्यूरेसी होना चाहिए कि अगर किसी की एक्यूरेसी ज़्यादा है वो सेंसर हमको चूज करना है, ऐसा नहीं कि कोई भी ले लिए और ले लिए अमेजोन से ढूंढ लिए और लगा लिए, ऐसा नहीं होगा, राइट। तो हमको सर्टेन क्राइटेरिया ध्यान में रखना पड़ेगा, विच विल बी फर्स्ट एक्यूरेसी, एक्यूरेट होना चाहिए। अगर 24 डिग्री सेंस करने के लिए बोला है तो 24.1 चलेगा, लेकिन 25 डिग्री नहीं चलेगा, सो यू विल बी डिस्कार्डेड। तो हमको वो सेंस करने के लिए उस एक पैरामीटर को ढूंढना पड़ेगा। अगेन रिस्पॉन्स टाइम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर सेंसर वहां से सेंस कर रहा है और मुझे यहाँ पे इनपुट 5 मिनट के बाद आ रहा है तो मेरा पूरा सिस्टम डाउनफॉल हो जाएगा, राइट। तो रिस्पॉन्स टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट हियर। देन स्टेबिलिटी, अगर दैट इज 250 मिलीसेकंड, एक 250 मिलीसेकंड, राइट, Millisecond, मिलीसेकंड, fraction of मतलब second. देखिए कितने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो फीडबैक देना चाहिए, और इवन लेस देन दैट, इवन लेस देन दैट। जस्ट मैंने डिजिट आपको दिया है स्पेसिफाई करने के लिए कि हाउ इट शुड बी एक्यूरेट एंड सेंसिबल। तो यहाँ पे फिर से थर्ड है स्टेबिलिटी, ±1%। अब मोस्ट ऑफ द सेंसर जो होंगे वो मेरे एटमॉस्फेरिक से, प्रेशर से, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से डिरेट होते जाएंगे। अगर वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा डिरेट होते गए तो फिर से मेरी एक्यूरेसी हैम्पर हो जाएगी। तो उसको कैलिब्रेट करते रहना है। तो उसको कैलिब्रेट करते रहना पड़ता है, दैट इज अगेन तुम्हारा खर्चा वाला काम है। वो सेंसर निकालो, एक कैलिब्रेशन लैब में डालो, उसको कैलिब्रेट करो, फिर से लाओ, फिर से लगाओ। उससे अच्छा आप जितना स्टेबल सिस्टम होगा, जितना स्टेबल सेंसर होगा, उतना ये कैलिब्रेशन वाला स्पैन बढ़ाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, राइट। जहाँ पे 1 साल लगने वाला है यहाँ पे 5 साल 5 साल लग सकते हैं, तो 5 साल के लिए तो मैं फ्री हो गया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है। सो अगर ये 3 जो स्पेसिफिकेशन में ध्यान में रखता हूँ तो एक अच्छा सेंसर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, राइट। अब इस एंटायर फ्रेम से मैं और एक चीज में आपको क्वेश्चन करना चाहूंगा कि मिली एम्पियर में एक आउटपुट दे रहा है, एक वोल्ट में आउटपुट दे रहा है, तो ये कैसे सिलेक्ट किया जाए कि मिली एम्पियर आउटपुट दे और वोल्ट आउटपुट दे, राइट। तो ध्यान में रखिए, हमने ओम्स लॉ सुना होगा, सीरियल एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सुना होगा, राइट। तो जब कभी भी लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन होता है, लाइक मुझे 100 फुट का कम्युनिकेशन करना है, राइट। तो अगर सर मैंने वोल्ट वाला एक सेंसर अगर यूज कर दिया तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, राइट। जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है, यहाँ पे एक छोटे डिस्टेंस पे 10 किलो ओम, फिर मैं बढ़ता हूँ 20, 30, 40, 50 अप टू 100 ओम, बहुत सारा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो सेंसर वैल्यू दे पाएगा क्या बराबर? नहीं दे पाएगा। इन दैट केस मैं क्या करता हूँ, जो भी सेंसर करंट आउटपुट देता है वो मैं वो सिलेक्ट करता हूँ। सो एम्पियर वोंट ड्रॉप, एम्पियर वोंट ड्रॉप, क्योंकि करंट सीरीज में कांस्टेंट होता है, सेम रहेगा। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ड्रॉप होता है, ओके। ये सीरियल कम्युनिकेशन है। सो दैट्स व्हाई देयर आर 2 टाइप्स। सो दैट इज मेन थिंग टू रिकॉल एंड रिमेंबर कि टेम्परेचर सेंसर या फिर कोई भी सेंसर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, किस पैरामीटर में। पहले ये पैरामीटर तो मैंने बता ही दिए, मोर इम्पोर्टेंट है कि VDC या फिर मिली एम्पियर का कैसे हम सेंस करेंगे या फिर चूज करेंगे। सो दैट इज ऑल इन ऑल इन दिस। और उसी के बेस पे हम लोग जो है प्रोटोकॉल भी सेलेक्ट करते हैं। प्रोटोकॉल का इनसे कोई लेना देना इससे कुछ नहीं, लेना कोई लेना देना नहीं है। ओके। प्रोटोकॉल का कोई लेना देना नहीं, वो अपने आप काम कर लेंगे। अपने आप काम कर लेगा। एक क्वेश्चन है अभी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। अब मैंने सेंसर बताया, आई हैव नॉट एक्सप्लेन दैट व्हाट इज दिस। तो क्वेश्चन इज वेयर टू चूज द बल्ब टाइप और एवरेजिंग टाइप डक्ट माउंट सेंसर, ठीक है। डक्ट तो सबको पता ही है क्या है, डक्ट है ना। Let's say this is air handling unit, right? यहाँ पे सप्लाई फैन है, ठीक है। यहाँ पे सेंसर है, मैंने लगाया, यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे सेंसर है,
ये है मेरा रिटर्न एयर सेंसर, ये है मेरा मिक्स्ड एयर सेंसर, मिक्स्ड एयर टेम्परेचर, सॉरी ये है मेरा फिर से रिटर्न एयर सेंसर, मैं एक रिटर्न एयर सेंसर दोनों को कर सकता हूँ। ये है मेरा मिक्स्ड एयर सेंसर, ये है मेरा OA आउटसाइड एयर टेम्परेचर सेंसर। अब जब ये आउटसाइड एयर टेम्परेचर का जो डक्ट है, मतलब आउटसाइड का जो डक्ट है, एग्जॉस्ट का डक्ट है, रिटर्न का जो डक्ट है, वो तो सेम साइज का होता है, राइट? मतलब अगर मैं क्रॉस सेक्शनल अगर मैं इसका देखूं, फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अ डक्ट, मैं इस डक्ट पे कोई सेंसर माउंट करता हूँ विच इज बल्ब टाइप सेंसर, मतलब एक छोटा सा एक रॉड होता है उसमें, और मैं डायरेक्टली डक्ट में माउंट कर सकता हूँ। यू मे हैव सीन समवेयर, राइट? सो अगर यहाँ से कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ एयर जा रही है, मतलब वेदर इट इज रिटर्न एयर और आउटसाइड एयर और एग्जॉस्ट एयर, तो एक ही टाइप का एयर है। जिस एक टाइप का एयर है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा, एक ही टाइप का टेम्परेचर होगा, राइट? तो उस टाइप के टेम्परेचर के लिए मैं बल्ब टाइप सेंसर यूज करूंगा, ठीक है? अभी आप मुझे बताइएगा कि मैं जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं करेक्ट हूँ या फिर रॉन्ग? I beg to differ here. ओके, I beg to differ here because the temperatures of the return air, exhaust air and return air will be the same. राइट But when it comes to fresh air, Right. it will be totally different. राइट सर। सो वी आर टॉकिंग हियर, मैंने 3 सेंसर, अगर 3 डक्ट है मेरे पास में HU के, तो मैं रिटर्न के लिए अलग यूज करूंगा बल्ब टाइप, OA के लिए मैं अलग यूज करूंगा, और सप्लायर के लिए अलग बल्ब टाइप यूज करूंगा, ठीक है? क्योंकि एक ही टाइप का टेम्परेचर है, डेडिकेटेड टेम्परेचर है। लेकिन जब मैं एक प्लेनम की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्लेनम मतलब HU का कोई प्लेनम है, ऊपर से रिटर्न एयर आती है, राइट? अगर मैं HU यहाँ पे अगर साइड व्यू आपको दूं, यहाँ पे रिटर्न एयर आएगी, यहाँ से OA आएगा, यहाँ पे सप्लाई आएगा। इस क्वांटिटी को मैं प्लेनम बोलता हूँ, राइट? जहाँ पे भी 2 से 3 टाइप के एयर्स मिक्स होते हैं वो दैट इज प्लेनम। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही टेम्परेचर सेंसर लगा दूँ, क्या वो प्रॉपर वैल्यू दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बल्ब टाइप लगा देता हूँ तो सिर्फ ये RA का एक रीडिंग लेगा, व्हाट अबाउट दी OA, है ना? उस केस में मैं क्या करता हूँ कि एवरेजिंग टाइप ऑफ सेंसर मैं यूज करता हूँ। मतलब एवरेजिंग टाइप ऑफ सेंसर क्या है कि यहाँ पे एक सेंसर डक्ट पे मैं माउंट करूंगा, उसका एक प्रोब रहेगा, वो एंटायर डक्ट में वो ऐसा चलेगा, सो दैट जहां से भी एयर्स आएंगे वो एवरेजली सेंस होगा और एवरेज रीडिंग देगा, सो दैट विल बी अ करेक्ट टाइप ऑफ रीडिंग वी विल गॉट। सो ये है कि एवरेजिंग और बल्ब टाइप हम कब यूज करेंगे। सो जहां कहीं भी नंबर ऑफ एयर डिफरेंट टाइप्स के एंटर कर रहे हैं पर्टिकुलर जगह पे, वहां पे हम एवरेजिंग करेंगे। अब मैं क्वेश्चन करता हूँ, ये कंसेप्ट समझ में आ गया सबको, ठीक है? अगर मैं किसी साइट पे गया आज, ठीक है, मैं साइट पे गया, उस टाइम अब अगेन ये एवरेजिंग टाइप ऑफ सेंसर बहुत महंगा होता है, बल्ब टाइप सेंसर सस्ता होता है, ठीक है? मान लीजिए कि उस साइट पे प्लेनम है, मेरे एंड कस्टमर ने बोला है मुझे HU आज के आज कमीशन करके चाहिए, सॉरी, और वहां पे एवरेजिंग सेंसर ही नहीं है, लेकिन मल्टीपल आपके पास में बल्ब टाइप सेंसर है, क्या वो आप यूज करके वो सेम रीडिंग ला सकते हो? कर सकते हैं। दैट इज द राइट आंसर। तो यही मुझे बताना था कि अगर मैं निकाल दिया, मेरे पास में अगर कोई वे नहीं तो मैं वो भी कर सकता हूँ, लेकिन दैट इज नॉट फिजिबल। जस्ट मैंने एक वैल्यू ऐड करने के लिए क्वेश्चन पूछा। मल्टीपल सेंसर में हर जगह से डक्ट टाइप माउंट कर दूंगा, इन सभी टेम्परेचर का मैं एवरेज लूंगा और उस एवरेज वैल्यू को पास करूंगा टू दी कंट्रोलर, तो वो मेरा एक करेक्ट वैल्यू ऑफ टेम्परेचर सेंसर हो गया। फिर मेरे पास एवरेजिंग सेंसर हो या ना हो, But which will be more economical? एवरेजिंग सेंसर ऑफ कोर्स, Though it is expensive, but दैट इज इकोनॉमिकल, क्योंकि हम वो मतलब एक जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ नहीं करना है, जस्ट मैंने जुगाड़ आपको एक नॉलेज के लिए बताया है, सो दैट इज जुगाड़। Now we'll move on to the control strategy of the AHU or entire in HVAC. How the AHU works, that is all depends on these 4 type of control strategies.
फर्स्ट है हमारा ऑटो मोड, सेकंड वन इज मैनुअल मोड, थर्ड इज फायर एंड स्मोक मोड, फोर्थ वन इज शट डाउन मोड. तो फर्स्ट मोड को हम देखते हैं ऑटो मोड. When the HU start in the auto mode, that is selector switch installed in the MCC, that is motor control central panel, must be in auto position. The unit can be started or stopped from BMS. मैनुअल नहीं रहना चाहिए. सबसे पहले मोटर कंट्रोल पैनल के बाद जाना है, उसको ऑटो में डालना है. अगर ऑटो में वहां से डालेगा तो पूरा ट्रांसफर BMS में चले जाएगा. तो वहां से हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं. ठीक है. When the start for the HU is initiated, the control program residing in the controller follows the following sequence. अब सीक्वेंस क्या है? किसी भी HU को स्टार्ट करने के लिए सीक्वेंस क्या है? प्री फिल्टर स्टेटस, मिक्स्ड एयर टेम्परेचर. अगर किसी को एब्रिविएशन नहीं समझा तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी दैट. प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क मी अ क्वेश्चन. अगर पता है तो डेफिनेटली बताओ. ठीक है. उसके बाद हम लगाएंगे कूलिंग कॉइल. CHWS CHWR CHW valve output. Pre-filter status, mixed air temperature, chilled water valve output. यहाँ पे मैं देता हूँ सप्लाई फैन स्टेटस, सप्लाई फैन कमांड, सप्लाई फैन आउटपुट. यहाँ पे मैं दूंगा सप्लाई एयर टेम्परेचर. यहाँ आगे मैं सेंसर कनेक्ट करता हूँ. सप्लाई एयर प्रेशर, P फॉर प्रेशर, T फॉर टेम्परेचर. ठीक है, सिंपल एकदम. अब यहाँ पे जो डैम्पर है उसको मैं कहता हूँ मिक्स्ड एयर डैम्पर आउटपुट. यहाँ पे जो मेरा डैम्पर है थोड़ा सा करेक्ट करूंगा. This damper will your cross blade damper. So it is exhaust, it is outside air. This is your return fan. This is your return air temperature and return air humidity. कोई सेंसर ऐसे जो दो कॉम्बिनेशन में हमको वैल्यूज देते हैं, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी. वो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं. जब किसी कस्टमर ने बोला कि मुझे सेपरेट मॉनिटर करना है तो हम अलग अलग सेंसर लगाएंगे, या फिर किसी ने बोला मुझे इनबिल्ट 2-in-1 चाहिए तो हम वहाँ पे दोनों एक ही सेंसर लगाएंगे. थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है. अगेन यहाँ पे मैं मेजर करूंगा रिटर्न एयर CO2. ठीक है, ये है मेरा RA. एग्जॉस्ट एयर OAD output, EAD output, mixed damper output. Return fan status, return fan command, return fan output. ठीक है. So now we'll see the modes of operation. अब सबसे पहले कि किसी HU को स्टार्ट करना है मुझे. ठीक है, तो मैं मेरे सॉफ्टवेयर से, मतलब मेरे मैनेजमेंट लेवल से, जहाँ से मैं एक BMS रूम में बैठा हूँ, वहाँ पे उस पर्टिकुलर ग्राफिक्स पे जाऊँगा, HU1 के ग्राफिक्स पे जाऊँगा और वहाँ से सिस्टम इनेबल का मैं सिस्टम इनेबल कमांड पास करूँगा. सो वंस द सिस्टम इनेबल कमांड इज ऑन बोर्ड टू द कंट्रोलर, सबसे पहले क्या होता है कि एग्जॉस्ट एयर डैम्पर, OA डैम्पर, मिक्स्ड एयर डैम्पर ऑन होते हैं और ऑन होना चाहिए. सबसे पहले तीनों एट ए टाइम एक ही टाइम पे ऑन होना चाहिए. अब वो किस फॉर्मेट में, किस कॉन्टेक्स्ट में, किस वैल्यू में ऑन होंगे? योर एग्जॉस्ट एयर डैम्पर एंड OA डैम्पर विल बी XX and your mixed air damper should be 100 - X.
सो अगर मेरा आउटसाइड डैम्पर 30% पे ऑन होता है तो मेरा एग्जॉस्टेड डैम्पर कितने पे ऑन होना चाहिए? 30%. 30% पे. एंड मिक्सर डैम्पर कितने परसेंट पे? 70%. 70% पे. क्लियर? तो जैसे ही सिस्टम इनेबल पास ऑन हुआ, मैंने डैम्पर ऑन कर दिया, डैम्पर ऑन हो गए, लेकिन उसके बाद सप्लाई फैन ऑन करने से पहले मुझे वो स्टेटस लेना पड़ेगा डैम्पर का. वो क्योंकि अगर मैंने स्टेटस नहीं लिया, सिर्फ मैंने कमांड दे दिया, डैम्पर ऑन ही नहीं हुए, उसके बाद सप्लाई फैन ऑन हो गया, तो सक्शन प्रेशर बढ़ेगा. सक्शन प्रेशर बढ़ेगा, डक्ट कंप्रेस हो जाएगा और बस्ट हो जाएगा. राइट? तो सबसे पहले डैम्पर का स्टेटस लेना बहुत जरूरी है. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरलॉक. तो इंटरलॉक मैं देखता हूं सेफ्टी इंटरलॉक्स में आता है कि जिसमें मैं डैम्पर का स्टेटस मैंने चेक करना चाहिए, प्री फिल्टर का स्टेटस मैंने चेक करना चाहिए. सो दैट इज कॉल्ड एज इंटरलॉक. वो इंटरलॉक होता है सप्लाई फैन के साथ में. तो मान लीजिए डैम्पर्स ऑन हो गए पर्टिकुलर कंडीशन पे, फीडबैक्स आ गए, देन कंट्रोलर क्या करेगा? बाय एल्गोरिदम से सप्लाई फैन कमांड को कमांड पास कर देगा. उस टाइम पे सप्लाई फैन कमांड से सप्लाई फैन स्टार्ट हो गया. ठीक है? अब सप्लाई फैन स्टार्ट हो गया, तो सप्लाई फैन स्टार्ट हो गया तो डेफिनेटली अगेन सप्लाई फैन को जो मोटर है वो बेल्ट ड्रिवन होता है या फिर ईसी फैन होता है. तो अभी वहां पे कुछ स्टार्टर पैनल भी होते हैं जो कि रिले से हमको वैल्यू पास करते हैं. राइट? मान लीजिए वो रिले खराब हो गया, हार्डवेयर के थ्रू में बात कर रहा हूँ, रिले खराब हो गया, तो क्या मेरे कंट्रोलर को पता चलेगा कि सप्लाई फैन स्टार्ट हो गया? नहीं पता चलेगा. अगेन सिस्टम फेल, मिसमैच अलार्म में चले जाएगा या फिर सिस्टम ऑन नहीं करेगा. तो उस चीज को अगेन मैं फिर प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करता हूं, मैं इस सप्लाई फैन के अक्रॉस में एक डीपी स्विच लगा देता हूं, डिफरेंशियल प्रेशर स्विच. उससे क्या होता है, सेंस कर लेगा. ये सप्लाई फैन है मेरा, यहाँ पे मैं स्विच लगाता हूं, तो जब कभी भी सप्लाई फैन ऑन होगा, अगर रिले काम नहीं कर रहा है तो डिफरेंशियल प्रेशर स्विच में प्रेशर डिफरेंस आएगा और वो स्टेटस डायरेक्टली ऑन कर देगा. वो ऑन किया हुआ स्टेटस फिर से कंट्रोलर में चले जाएगा, कंट्रोलर सेफ हो जाएगा, भैया सप्लाई फैन ऑन हो गया. ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? अब सप्लाई फैन समझ चालू हो गया है, रिटर्न फैन तो वेट कर रहा है, भाई मुझे कब चालू करोगे. जैसे ही सप्लाई फैन का स्टेटस आ गया, जैसे ही ऑन हो गया, अगेन कंट्रोलर डायरेक्टली फीडबैक लेगा सप्लाई फैन के स्टेटस से, रिटर्न फैन को कमांड कर देगा, भैया तुम भी चालू हो जाओ, तुम क्यों वेट कर रहे हो. सेम कंडीशन वहां पे भी रहेगी, वो भी स्टेटस लेगा. बाय एनी वे अगर यहाँ पे वो डीपी स्विच आपको स्टेटस नहीं देता है तो सिस्टम विल रेज द अलार्म कि आप सिस्टम बंद करो, क्योंकि स्टार्ट मत करो, क्योंकि उससे आपके डिफरेंट चीजें वो हैम्पर होंगी. तो सप्लाई फैन रिटर्न फैन चालू हो गया, यहां तक ये समझ में आया. अब सिस्टम चालू हो गई है. अब सिस्टम मैंने फॉर एग्जांपल 24 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए रन करना है. राइट? इनिशियली कंट्रोलर चेक करेगा कि टेम्परेचर सेंसर से कितना वैल्यू है, रूम टेम्परेचर, या फिर अगर मैंने यहाँ पे रूम टेम्परेचर या फिर सप्लाई टेम्परेचर कर दिया तो मैं यहाँ से भी सेंस कर सकता हूँ, मैं यहाँ से भी सेंस कर सकता हूँ. ठीक है? तो वो सेंस करेगा. अगेन जब सेंस करेगा उस बेसिस पे ये चिल्ड वाटर वॉल जो है मॉड्यूलेट करेगा. सेट पॉइंट के ऊपर में ये टेम्परेचर सेंसर अनटिल एंड अनलेस नहीं आता है तब तक कि वो मॉनिटर करेगा. एक बार मॉनिटर कर दिया तो फिर से चिल्ड वाटर वॉल को बोलेगा आप हाफ ऑफ द पोजीशन के लिए चालू रहिए. तो सिस्टम हमारा ऐसे काम करता है. ठीक है? अब इसको फिर से डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे, जो कि मैं बता रहा हूँ आपको कंट्रोल लूप्स. इसके कंट्रोल लूप्स कैसे होते हैं, ये मैंने जैसे थ्योरेटिकली थोड़ा सा एक ब्रीफ करने की कोशिश की कि कैसे वो वर्क करेगा, कैसे फीडबैक लेगा, ये कैसा वन बाय वन करेगा वो मैं दिखाता हूँ आपको. सो दीज आर दी कंट्रोल लूप्स. पहले टेम्परेचर कंट्रोल लूप देखेंगे. ठीक है? ये मैं जैसा है वैसा ही रहने देता हूँ. टेम्परेचर कंट्रोल लूप में सप्लाई टेम्परेचर है, देन रिटर्न एयर टेम्परेचर है, मैं जोन टेम्परेचर भी ले सकता हूँ, जोन टेम्परेचर भी मॉनिटर करके उसके ऊपर भी मॉनिटर कर सकता हूँ. लेकिन ये जितने भी टेम्परेचर सेंसर है वो एक चीज से इंटरलॉक रहेगी. इंटरलॉक का मतलब आपको समझ में आ गया. व्हाट इज इंटरलॉक?
राइट, कनेक्टेड फीडबैक में जो काम करेगा वो, राइट। कैन यू गेस कि अगर मुझे टेम्परेचर मॉनिटर करना है तो मुझे किसके साथ इंटरलॉक करना पड़ेगा? मैम चिल्ड वाटर के साथ, सॉरी, चिल्ड वाटर के साथ, चिल्ड वाटर के साथ, क्योंकि चिल्ड वाटर में जितना बढ़ाऊंगा कम करूंगा वैसे टेम्परेचर वो मॉड्यूलेट कर पाएगा, राइट, मेंटेन कर पाएगा। सो दिस इज माय टेम्परेचर कंट्रोल लूप। उसके बाद में आते हैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल लूप। अब ह्यूमिडिटी में मैंने जैसे बोला कि रिटर्न ह्यूमिडिटी है, यहाँ पे भी मैं सप्लाई एयर आरएच ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ऐड करने के बाद एक मैं ह्यूमिडिफायर ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि अगर पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी 50% ऑफ आरएच मुझे मेंटेन करना है तो वो किसके साथ में इंटरलॉक होगा? फिर ह्यूमिडिफायर के साथ में, क्योंकि ह्यूमिडिफायर लगाना पड़ेगा हमको। अगर मेंटेन नहीं करना है तो ठीक है, बंद कर दो ह्यूमिडिफायर, और अगर मेंटेन करना है तो ह्यूमिडिफायर ऑन कर दो, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल लूप। अब प्रेशर लूप है। प्रेशर लूप, स्टैटिक प्रेशर से मैं एक एचयू कंट्रोल कर सकता हूँ। अब स्टैटिक प्रेशर वो मेजर करके मैं एचयू को कैसे कंट्रोल करूंगा? अब देयर आर अगेन टू टाइप्स ऑफ एचयू, जो कि कांस्टेंट वॉल्यूम आपने सुना होगा, जो कि एक ही कांस्टेंट वॉल्यूम पे चलता है, एक ही स्पीड पे चलता है, एंड अगेन दूसरा जो एचयू है वो वेरिएबल स्पीड पे चलेगा, राइट। तो वो वेरिएबल स्पीड किस पे चलेगा उसको कौन कमांड करेगा? सप्लाई फैन मोटर को वीएफडी, ठीक है, वीएफडी कमांड करेगा। अब वो वीएफडी कैसे कमांड करेगा कि उसको तो कुछ कुछ इनपुट चाहिए, तो वो क्या लेगा? सबसे पहले स्टैटिक प्रेशर का इनपुट लेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर मुझे पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टैटिक प्रेशर मेंटेन करना है तो मुझे वीएफडी को या फिर फैन के स्पीड को रेगुलेट करना होगा, राइट। तो वो इंटरलॉक रहेगा विथ वीएफडी। मतलब मैं प्रेशर को पहले सेंस करूंगा। लेट से कि फॉर एग्जांपल एक 700 पास्कल का मेरे पास में प्रेशर का वैल्यू है मेंटेन करने के लिए, तो मैं यहाँ पे मेरा एक सेट पॉइंट होता है जो कि सप्लाई एयर प्रेशर सेट पॉइंट है मेरा 700 पास्कल पे। अगर प्रेशर सेंसर 600 पास्कल दे रहा है वैल्यू, तो वीएफडी को क्या बोलना पड़ेगा सप्लाई फैन को कि आप अपनी स्पीड बढ़ाओ सो दैट टू मेंटेन द स्टैटिक प्रेशर, राइट। तो सेम वाइस वर्सा, अगर ऊपर चले गया तो वीएफडी बोलेगा भैया बहुत हो गया, आप 50% पे ही रन करो, मेंटेन करना है। दिस इज द प्रेशर कंट्रोल। नाउ एयर फ्लो कंट्रोल लूप और CO2 कंट्रोल लूप। अब CO2 कंट्रोल लूप में मान लीजिए कि मेरा जोन है, इस जोन में कोई बता सकता है कि पर्टिकुलर CO2 का वैल्यू क्या होता है ह्यूमन को एक हार्म न करने के लिए, या फिर स्पेसिफिक वैल्यू until that CO2 level we can breathe easily, so that is 400 or something around 500 ppm particles per minute, right? So 400 ppm का अगर मेरे पास CO2 का सेट पॉइंट है, हर एक चीज सेट पॉइंट से रिलेटेड है। अगर मैं बताऊंगा नहीं उनको कि इतने पे वर्क करना है तब तक तो कोई सिस्टम काम नहीं कर पाएगा, राइट। सो दिस ऑल द सेट पॉइंट्स आर सॉफ्ट पॉइंट्स, राइट, सॉफ्ट पॉइंट्स, क्योंकि वो हमने कॉन्फ़िगर करे हैं प्रोग्रामिंग से और वहां पे वैल्यू फीड करी है और उस वैल्यू के बेस पे हम सब चीजों को मॉड्यूलेट करें। तो 400 ppm अगर मेरे पास में CO2 है जो कि मुझे मेंटेन करना है, तो अब इस CO2 लूप में क्या इंटरलॉक हो सकता है, कोई बता पाएगा मुझे? फ्रेश एयर, राइट, अगेन मिक्स्ड एयर डैम्पर, अगेन एग्जॉस्ट एयर डैम्पर, राइट। सो तीनों डैम्पर्स इंटरलॉक्ड होंगे मेरे CO2 सेंसर के साथ, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगेन मान लीजिए कि यहाँ पे 400 का वैल्यू है और 700 ppm मेरा सेंस कर रहा है CO2 लेवल, तो उस टाइम पे मुझे क्या करना पड़ेगा? फ्रेशर का जो डैम्पर है जो मैंने 30% पे मिनिमम लेवल पे ऑन कराया था उसको मॉड्यूलेट ज्यादा करना पड़ेगा। भैया तुम 70% पे चले जाओ,
और अगर ये 70% पे चले जाए तो टेक्निकली ये कितने पे जाएगा 30. 30%, क्योंकि 100 माइनस एक्स सिंपल है, एज सिंपल एज दैट, राइट? तो 30% पे चले गया तो डैम्पर जो रिटर्न एयर जो है वो कम कर रहा है, फ्रेश एयर है मेरा बढ़ रहा है, तो ब्रीदेबल एयर जो कि फ्रेश एयर है वो एंटर ज्यादा हो रही है, तो CO2 लेवल मेरा मेंटेन होगा, ठीक है? देन एयर फ्लो कंट्रोल लूप. अब एयर फ्लो कंट्रोल लूप में क्या है, AFMS स्टेशन होते हैं, एयर फ्लो स्टेशन, जो कि हम किसी भी फैन मोटर के अक्रॉस लगाते हैं, जो कि वेलोसिटी प्रेशर को मेंटेन करते हैं, क्योंकि कोई भी CFM सेंसर डायरेक्टली नहीं बना है पूरी दुनिया में. हम जो बोलते हैं कि ये जो मेरा 400 CFM पे होना चाहिए, कोई भी सेंसर डायरेक्टली वैल्यू आपको CFM में नहीं देगा. पहले आपको वेलोसिटी प्रेशर मेजर करना पड़ेगा. Even the hood also. इवन द हुड आल्सो सर, इवन द VAV, सभी का वेलोसिटी प्रेशर मेजर करना होता है बाय पीटॉट ट्यूब. Okay. पीटॉट ट्यूब मतलब एक अरेंजमेंट ऑफ ट्यूब होती है, दो सर्कल्स रिंग होते हैं, एक रिंग पे पहला एक प्रेशर वेलोसिटी लेता है, देन दूसरे रिंग पे प्रेशर लेता है, दोनों का डिफरेंस लेता है, उसको फिर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला रहता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ CFM. तो Area into velocity. एरिया इनटू वेलोसिटी, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एज योर CFM. तो वो अगेन पर्टिकुलरली हम वेलोसिटी प्रेशर मेजर करेंगे और उसके बाद उसको कन्वर्ट किया जाएगा बाय सॉफ्टवेयर बाय ब्लॉक से CFM पे, और उस पर्टिकुलर CFM पे अगर वैल्यू मुझे पहुंचाना है तो अगेन मुझे डैम्पर्स एंड फैन को मॉड्यूलेट करना पड़ेगा, सो दैट कि मैं पर्टिकुलर CFM मेंटेन कर सकता हूँ. यहाँ पे दो चीजें इंटरलॉक होगी, डैम्पर एंड फैन. मान लीजिए मैंने डैम्पर ही बंद कर दिया, फैन को बहुत जोर से चलाया बहुत स्पीड पे, तो क्या होगा आपको पहले ही कंडीशन में बता दिया, बर्स्ट आउट हो जाएगा, राइट? तो ये दोनों चीजों को मुझे इंटरलॉक करना पड़ेगा. सो दैट इज योर एयर फ्लो कंट्रोल लूप. सो आर यू गेटिंग बोर्ड और No. you are getting something Yes, what I'm yes. delivering to you? Exactly. Interesting. Right. Very interesting. Thank you so much. फिल्टर DP कंट्रोल लूप मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर. सर आपके जो फील्ड में मतलब जो आप हॉस्पिटल्स में वगैरह तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली कि अगर कोई फिल्टर क्लॉग्ड हो गया है तो वहाँ पे एयर प्रेशर जा ही नहीं पाएगा, या फिर अगेन वो नंबर ऑफ अलार्म्स जनरेट करेंगे, सब नहीं कर पाएगा मेरा सप्लाई फैन. सही है. उस टाइम पे अगेन मैं क्या करता हूँ, प्री फिल्टर स्टेटस जो कि मेरा DP स्विच है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि DP स्विच पहले क्या करता है, क्लीन है फिल्टर अक्रॉस में मैं डालूंगा वहाँ पे DP सेंसर, यहाँ से जो भी हवा आएगी आउटसाइड एयर वो ज्यादा प्रेशर रहेगा, और यहाँ पे अगर फिल्टर क्लीन है तो वही जो प्रेशर है वो यहाँ पे भी होगा, तो डिफरेंशियल प्रेशर 0 होगा, राइट? अगर एक से यहाँ पे आ रहा है और फिल्टर क्लीन है, थोड़ा सा ड्रॉप तो रहता ही है डेफिनेटली, बट सेम अमाउंट ऑफ मुझे एयर यहाँ पे मिल रही है, सो दैट कैन आई से दैट कि ये डिफरेंशियल प्रेशर 0 हो गया, x माइनस x 0 हो गया, उस टाइम पे मेरा फिल्टर जो दिखाएगा क्लीन. अगर ये क्लॉग हो गया, डर्टी हो गया, तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 10 आ रहा है, यहाँ पे 5 दिखाएगा, तो डिफरेंस आ गया, तो पर्टिकुलर लिमिट होती है तो वो सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो डिफरेंस दिखाया मतलब मैं क्या इमेजिन करूंगा कि मेरा फिल्टर क्लॉग्ड हो गया, डर्टी हो गया. सो फिल्टर स्टेटस क्या दिखाएगा, ईदर क्लीन और डर्टी. अगर डर्टी दिखाया तो एक टेक्नीशियन को भेजना है, फिल्टर को क्लीन करना है, फिर से रनिंग कंडीशन में लाना है. सो दैट इज कॉल्ड एज योर फिल्टर DP लूप. So one point which I think we should discuss is the pre-filters that we have. Right. Once they get clogged, definitely the whole efficiency of your system is down. But there is also a chance of that filter getting compromised. Because every filter will have a Different final pressure loads, drop right. capacity or a pressure handling capacity. Right. So if it goes beyond that, the filters also would get compromised. Right. Right. Right? They'll get blown off. Right. Right. And then there is heavy chance that you are blowing that much dust into the system. Right. Here just we are discussing. Keeping the pressure difference minimal. Right. Here
here we are just discussing about the pre filter. Again उसके बाद बैक फिल्टर भी रहता है. अगर वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता तो शायद ये क्वेश्चन आप नहीं करते, राइट? तो जस्ट मैंने एक अंडरस्टैंडिंग के लिए रखा हूँ. कितना सिंपल मैं रख सकता हूँ, ये सिस्टम को बहुत कॉम्प्लिकेट करके मैं बता सकता हूँ सर, सही. बट सिंपल होना चाहिए, ठीक है? तो डेफिनेटली सीरियसली मुझे अच्छा लगा आपने क्वेश्चन पूछा एंड मैं शायद आंसर दे पाया उसका, बट मैं सिंपल एक सिस्टम डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे. तो ऐसा है कि ये फिल्टर कंट्रोल लूप कैसा रहेगा, ठीक? अब ये कंट्रोल लूप हो गया, मेरा ऑटो मोड खत्म हो गया. अब मैं सेकंड मोड पे आता हूँ, मैनुअल मोड पे. अगेन इस मैनुअल मोड में मुझे स्टार्टर पैनल के पास जाना पड़ेगा, सिस्टम को ऑटो से मैनुअल करना पड़ेगा. इन दैट केस क्या होगा कि एंटायर सिस्टम विल बी वर्क एज गुड एज BMS एक्सेप्ट सप्लाई फैन, क्योंकि सप्लाई फैन को इंटरलॉक हमने स्टार्टर पैनल से किया गया है. तो उस मोड में क्या होगा कि सप्लाई फैन चलते रहेगा. काइंडली कम वंस अगेन. अगर मैनुअल मोड में मुझे कोई HU चलाना है, फॉर एग्जांपल, अगर कभी मतलब कोई टेक केयर कुछ चीजें खराब हो गई है, सेंसर खराब हो गया, राइट, तो मैं मैनुअल मोड में चलाता हूँ, मेरा सिस्टम बंद नहीं होना चाहिए, राइट. तो स्टार्टर पैनल से मुझे वो ऑटो मोड से जो मेरा पैनल में जो बटन था, जो कि सिलेक्टर स्विच बोलते हैं, मुझे वो मैनुअल मोड में करना पड़ेगा. ठीक है. मैनुअल मोड में करने के बाद क्या होगा कि उस स्टार्टर पैनल से मोटर को सप्लाई गया होता है, और वो जो मोटर है उस स्टार्टर पैनल से प्राइमरीली वर्क करती है. तो इधर वे कुछ भी हो जाए, मेरा मोटर उस पैनल से चालू होगा, यहाँ से BMS से चालू नहीं होगा. हाँ. यहाँ से नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो, मोटर से ही चालू होगा. और अगेन जितने भी जो कंट्रोल्स है वो मेरे BMS से जाएंगे. अच्छा. एक्सेप्ट फैन. और इसका कोई मीनिंग नहीं है फिर, क्योंकि मैंने मैनुअल में डाल दिया है. तो कितना भी टेम्परेचर दिखाई, कुछ भी करेंगे, वो सब ऐसा ही चलेगा, राइट? Then third mode is shutdown mode. When the shutdown command for the HU is initiated, the control program residing in the controller following the sequence. अब shutdown mode में डाला है सर मैंने आपको ऑटो मोड बताया था. HU चालू कैसे होता है, किस सीक्वेंस से चालू होता है? Can anybody relate to the shutdown mode? मतलब वाइस वर्सा करना है, बस वाइस वर्सा करना है. मतलब जब कभी भी मैं शटडाउन मोड में डालूंगा, HU को बंद करूंगा, सबसे पहले सप्लाई फैन एंड रिटर्न फैन ऑफ होना चाहिए, ठीक है? सो दैट कि जितना भी सक्शन प्रेशर है आउटसाइड का एंड रिटर्न का, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, HU शांत हो जाएगा. उसके बाद फिर हम वैल्यू पास करेंगे डैम्पर्स के थ्रू, जहाँ पे मेरे आउटसाइड डैम्पर्स एंड मिक्सड डैम्पर फिर से धीरे धीरे बंद होना चालू करेंगे. नॉट सिस्टम विल बी हैम्पर्ड, नॉट मेरा कोई कंपोनेंट विल बी हैम्पर्ड. ये सिंपल शटडाउन मोड है. मतलब धीरे धीरे जितने भी कंट्रोल वॉल्स है वो होंगे. सबसे पहले सप्लाई फैन एंड रिटर्न फैन बंद होगा, उसके बाद में मेरा कूलिंग वॉल या फिर हीटिंग वॉल बंद होगा. रिवर्स ऑटो मोड के रिवर्स, दैट इज योर शटडाउन मोड. Fire and smoke mode. The fire condition is determined by the fire alarm control panel. HU will automatically shut down and act like a shutdown mode. मतलब फायर डैम्पर का स्टेटस मुझे लेना पड़ेगा. अगर स्मोक डिटेक्टर मुझे लगाना होता है, कोई भी फायर एंड शटडाउन मोड में मुझे अगर HU मॉनिटर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे कोई सेंसर चाहिए होगा, राइट, जिसको हम बोलेंगे स्मोक डिटेक्टर. Either that will be in your return air smoke detector or supplier smoke detector, ठीक है? वो smoke detector फिर से इंटरलॉक करना पड़ेगा इसके साथ, क्योंकि अगर मेरा ये रिटर्न एयर से यहाँ से कोई अगर मान लीजिए स्मोक आ रहा है, यहाँ से स्मोक आ रहा है, तो सप्लाई फैन तो ऑन है, ये तो पूरा अंदर खींच लेगा, अंदर में जितने ऑक्यूपेंसी है वो हैम्पर हो जाएंगे, वो सांस नहीं ले पाएंगे. तो इस कंडीशन में जैसे ही मेरा, तो मान लीजिए मैं इसको एक स्मोक डिटेक्टर करता हूँ, RSMOST, ठीक है, स्मोक डिटेक्टर. तो ये स्मोक डिटेक्टर स्मोक डिटेक्ट करेगा. यहाँ पे डैम्पर मुझे ऐड करना पड़ेगा, जिसको मैं बोलूंगा रिटर्न एयर स्मोक डिटेक्टर डैम्पर. तो ये स्मोक डिटेक्टर इसको बंद करेगा. ये बंद कर दिया मतलब आइसोलेट कर दिया, हवा अंदर आने का कोई चांस ही नहीं. और अगर हवा आने का कोई चांस नहीं, अगर डैम्पर बंद कर दिया, तो क्या सिस्टम फिर से वर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. फिर वो इंटरलॉक करेगा मेरे सप्लाई फैन एंड रिटर्न फैन से, मतलब सप्लाई फैन एंड रिटर्न फैन को फिर से ऑफ कर देगा. सिंपल है.
At the same time, all the rest of the 3 dampers that will also. That will be again also closed. क्योंकि अगर सप्लाई फैन अगर क्लोज हो गया तो डेफिनेटली ये इंटरलॉक इधर में कनेक्टेड है, तो ये ऑफ हो जाएंगे. ये है हमारा फायर एंड स्मोक डैम्पर, स्मोक मोड. अब जैसे अलार्म की बात करेंगे, अलार्म इंडिकेशन, जैसे मैंने बताया प्री फिल्टर अगर क्लॉग होता है तो वो अलार्म जनरेट करेगा. कोई सप्लाई फैन मिसमैच करता है, मतलब कमांड दिया विद इन 60 सेकंड कोई उसका स्टेटस नहीं आया तो फिर से मिसमैच अलार्म जो मतलब करेगा. सप्लाई फैन प्रेशर का जो है वो हाई लिमिट लो लिमिट सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर का लो लिमिट, नंबर ऑफ alarms we can generate depending on the priority and user configuration. तो ये है हमारे अलार्म इंडिकेशंस. ये है एक HU. आप देखिए कि यहाँ पे कौन सा पॉइंट कैसा मॉनिटर कराया हुआ है. जैसे मैंने बोला था अभी कूलिंग कॉइल है तो उसका जो आउटपुट रहेगा पॉइंट टाइप जो रहेगा वो AO रहेगा, राइट, क्योंकि सर मैं मॉड्यूलेट कर रहा हूँ, है ना, तो वो AO रहेगा. अगर उसका कोई फीडबैक है, उस फीडबैक से वॉल से कंट्रोलर की तरफ कोई फीडबैक आता है, अगेन वो एनालॉग टाइप में है तो वो AI है, मतलब एनालॉग इनपुट है. सिमिलरली सो ऑन, आप देख सकते हो कि मतलब पकड़ लीजिए कि कोई डिफरेंशियल प्रेशर सेंसर है तो वो इनपुट जो ले रहा है वो एनालॉग ले रहा है, तो मैंने AI दिखाया हुआ है. सो ईच एंड एवरी कंपोनेंट हैज बीन डिफाइंड एज अ एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट, राइट. Now this is the IO list point schedule. ठीक है, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, शायद दिख नहीं रहा है प्रॉपरली. मैं इसको रिटर्न एरेंज बना देता हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये IO लिस्ट कैसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं. ये IO लिस्ट क्यों कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, क्योंकि until and unless I have the point list तब तक कि मैं पर्टिकुलर हार्डवेयर नहीं सिलेक्ट कर सकता. अभी तक मुझे HU चालू कैसे होता है वो पता है, लेकिन HU को चालू कैसे करवाना है वो अभी तक छूटा हुआ है. तो इसके लिए हम पॉइंट लिस्ट समराइज करेंगे. सर तो सप्लाई फैन स्टेटस जो रहेगा वो क्या रहेगा. सप्लाई फैन स्टेटस कौन सा पॉइंट टाइप रहेगा, डिजिटल, मतलब BI. सप्लाई फैन कमांड ये कौन सा पॉइंट रहेगा, डिजिटल, मतलब एक मैं BO ले सकता हूँ, AI एंड AO. मान लीजिए इन सभी को कॉन्फ़िगर करके मैंने यहाँ पे वैल्यूज असाइन कर दिए हैं, ठीक है. टोटल BI काउंट मेरा कितना है, 4. BO काउंट कितना है, 2. AI काउंट कितना है, 3. एंड AO काउंट कितना है, 2. अब मुझे एक ऐसा कंपनी का कंट्रोलर लेना पड़ेगा जो कि ये सभी काउंट्स को मैच करता है, राइट. अब आप बोलेंगे कि हाँ 4 दिख रहा है, 2 3 2 दिख रहा है, तो मैं वही ये कंट्रोलर ले लेता हूँ, सेम मैच कर लेता हूँ. लेकिन ऐसा नहीं होता है सर. फ्यूचर पर्सपेक्टिव, रेट्रोफिटिंग, और कोई क्लाइंट ने मॉडिफिकेशन करने को बोला, हमारे पास में एक प्रोविजन होना चाहिए, राइट. तो मैं एक ऐसा कंट्रोलर सिलेक्ट करूंगा जिससे कि मैं एक 30% ऑफ द AI और इनपुट काउंट और BI और बाइनरी काउंट मैं स्पेयर में रख पाऊं, राइट. तो वैसा मैं एक कंट्रोलर सिलेक्ट कर लूंगा. ये हो गया मेरा DDC कंट्रोलर, जिसको मैं बोलूंगा DDC कंट्रोलर, ठीक है. वो मेरा एक सिलेक्ट हो गया. देन कंट्रोलर सिलेक्ट हो गया, आपका पॉइंट लिस्ट कॉन्फ़िगर हो गया. अब उसके बाद में उस कंट्रोलर को मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, मतलब अब मैं ऑफ कर देता हूं. उस एंटायर कंट्रोलर में मुझे प्रोग्रामिंग करना होगा, राइट, क्योंकि हार्डवेयर आ गया है, सॉफ्टवेयर के बिना कोई नहीं चलता है, राइट. तो मुझे वो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. तो उस टाइम पे अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है. लाइक जॉनसन कंट्रोल्स हैज मेटासिस, जैसे मैंने HMI आपको बताया, मोबाइल के लिए एंड्रॉइड यूज होते हैं, राइट. तो जॉनसन कंट्रोल हैज मेटासिस. उसके बाद में ट्रिडियम कंपनी है, उसका नाइग्रा प्लेटफॉर्म है. हनीवेल का कोई अलग प्लेटफॉर्म होगा, सीमेंस का कोई अलग प्लेटफॉर्म होगा. तो उस प्लेटफॉर्म
के साथ में उनके डेडिकेटेड कॉन्फ़िगरेशन टूल्स भी हमारे पास में हमको मिलते हैं। उस कॉन्फ़िगरेशन टूल्स से हमको वो प्रोग्रामिंग करना होता है, एंड ईच एंड एवरी कॉन्फ़िगरेशन टूल बेस्ड ऑन ब्लॉक डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट ब्लॉक डायग्राम कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन बेसिक लॉजिक गेट्स। शायद लॉजिक गेट्स के बारे में आपने सुना होगा, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, राइट? तो वो बस हमको एक कॉन्फ़िगर करना होता है, वो प्रोग्रामिंग हमको उस लैंग्वेज में, उस सॉफ्टवेयर में लिखना होता है, वो प्रोग्राम डंप करना होता है हमारे कंट्रोलर में। फील्ड डिवाइसेस से हमको पर्टिकुलर एआई पे क्या सेंसर आएगा वो असाइन करना होता है। मान लीजिए ये मैं डीडीसी पैनल में मेरा एक कंट्रोलर लगा रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5, 6, मैं आईओ लिस्ट में मॉनिटर कर रहा हूँ कि मेरे फर्स्ट एआई पे मुझे टेम्परेचर सेंसर चाहिए, तो ये टेम्परेचर सेंसर मुझे इस पे कनेक्ट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे प्रेशर सेंसर, ये मैं आईओ लिस्ट में डिफाइन करता हूँ, ठीक है? तो पर्टिकुलर नंबर पे रिस्पेक्टिव फील्ड डिवाइस कॉन्फ़िगर होगा। उसी डिवाइस के लिए मैंने अंदर प्रोग्रामिंग भी डाल दी है ये, ठीक है? तो मेरा प्रोग्राम भी आ गया, देन मेरा फील्ड डिवाइसेस मॉनिटर हो गया, मेरा प्रोग्राम हो गया, मेरा कंट्रोलर सेट हो गया। अब मैं उसको कमांड कैसे करूंगा, क्योंकि कंट्रोलर में हर बार जाके कोई इतना टेक्निकल आदमी नहीं होता, क्योंकि फील्ड में काम करने वाले सब नॉन टेक्निकल लोग होते हैं। ये सिर्फ हमारे कंपनी के लिए होता है कि हमने ये सब दिया, हमने कॉन्फ़िगर किया, लेकिन जब कोई थर्ड पार्टी बंदा जो बेसिक बेचारा जो जा रहा है, उसको तो कुछ भी नहीं पता कैसे एक्सेस करे, क्या करे। तो इसीलिए हम बीएमएस रूम में उसको एक यूजर इंटरफेस देते हैं। मतलब एक बच्चा भी आज यूट्यूब से वीडियो जब एक्सेस करता है तो वो यूजर इंटरफेस से करता है। तो ये यूजर इंटरफेस देना बहुत जरूरी है, ताकि हम हर एक इंसान को बच्चा समझे और उसको ईज ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल दे दे। सो ये किसके थ्रू होगा? यूजर इंटरफेस से। यहाँ पर आएगा ह्यूमन मशीन इंटरफेस, है ना? ह्यूमन मशीन इंटरफेस, एब्सोल्युटली राइट सर। तो ये है मेरा यूजर इंटरफेस, जो कि मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का फर्स्ट फ्लोर मैंने इमेजिन किया हुआ है। यहाँ पे मेरे हर कोई ये वीएवीज है मॉनिटर किए हुए। यहाँ पे मेरा एक एयर हैंडलिंग यूनिट है, मैंने प्लेसमेंट कर दिया कि जिस रूम में एयर हैंडलिंग यूनिट रहेगा वहाँ पे एयर हैंडलिंग यूनिट रहेगा, जिस रूम में जिस डक से वीएवीज थ्रो कर रहे हैं वहाँ पे वीएवीज रहेंगे। अभी मुझे एचयू चालू करना है तो मैं सिंपली जाऊंगा इस यूजर इंटरफेस पे, एचयू पे क्लिक करूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से वो आएगा मेरे पर्टिकुलर एचयू पे। वो एचयू से मैं सप्लाई फैन कमांड को ऑन कर सकता हूँ, ऑफ कर सकता हूँ, एंड वर्ल्ड इज योर्स। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजर इंटरफेस। तो ऑल इन ऑल मैंने वैसे सेशन पूरा कंप्लीट किया है, एक एक्टिविटी रखा था बट नंबर ऑफ काउंट नहीं है, तो एक्टिविटी शायद हमको स्किप करना पड़ेगा डेफिनेटली। बट एक सेशन खत्म करने से पहले क्वेश्चन फिर से मैं आपको पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि कैन वी प्लेस द कूलिंग वॉल इन चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन, यस और नो? जस्टिफाई इफ एनीबॉडी हैज अ आंसर जस्ट और अ हिंट। क्या हम सप्लाई लाइन में कूलिंग वॉल यूज कर सकते हैं? आपने देखा होगा, या फिर मैं बताना शायद भूल गया, आई एम रियली सॉरी। हर एचयू में जो वॉल होता है, whether it is heating wall, whether it is cooling wall, in FCU, in CSU, कोई भी एयर साइड के कंट्रोल यूनिट में रिटर्न पाइपिंग में ही वॉल हमको प्लेस करना होता है। वो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि अगर फॉर एग्जांपल तो फिर सप्लाई में नहीं होगा, फिर सप्लाई में नहीं होगा सर। हाँ, रिटर्न में है तो सर उल्टा घुमाएंगे। अच्छा थैंक्स। If this is my cooling coil, ये है मेरा CHWS, this is my CHWR, और यहाँ पे मेरा वॉल है, राइट? अगर मैं यहाँ पे वॉल ना रखते हुए अगर यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूं, तो जब भी सप्लाई चिल्ड वाटर सप्लाई यहाँ पे एंटर करेगा, ये वॉल फॉर एग्जांपल बंद है तो एंटर ही नहीं करेगा।
पहली बात बराबर कूलिंग हैम्पर हो Right. गया, राइट। तो अगर यदि ये ओपन भी है, मान लीजिए उस टाइम पे ये ओपन है तो ये वर्क करना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन जब कभी फॉर एग्जांपल सप्लाई बंद हो गया फिर से, या फिर लाइन चले गई, तो इस चिल्ड वाटर कॉइल में वाटर आएगा ही नहीं, ठीक है। एंड आपने शायद सुना होगा कि अगर कोई भी मेटल अगर किसी एम्प्टी या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो मेटल ऑक्सीडाइज होना चालू करता है या फिर करोड होना चालू करता है। बराबर तो कोई भी कूलिंग कॉइल में हमको हमेशा वो कॉइल ऑक्यूपाइड रखना बहुत जरूरी है। उसी के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वॉल लगाते हुए यहाँ पे मैं करूंगा और ये वॉल हमेशा 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 नॉर्मली क्लोज रखूंगा ताकि वो पीछे का भरा ताकि रहे। जितना भी पानी है यहाँ पे हमेशा लूप में रहे, हमेशा कूलिंग मिले और वो वहां पे एयर बबल्स जनरेट ना हो। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So now I am just ending my entire session and seriously thank you so much. You have given me your precious time to listen to the entire insights of that building management system, and definitely I would like to again continue this session if times allows me again in the future, क्योंकि इट इज नॉट अगेन पॉसिबल। अभी मैंने सब एयर सिस्टम का HOD आपको एक्सप्लेन करा है, यहाँ पे ना VAV एक्सप्लेन किया, ना ही मैंने FCO और वाटर सिस्टम पूरा है। डेफिनेटली इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर आप मुझे कभी मतलब चांस देंगे तो डेफिनेटली आगे में वो भी हम कवर करेंगे। So that is all in all from my side. Thank you so much once again. Thank you so much. Thanks sir. Thank you. It was an engineer's presentation. Any question entire presentation में कुछ डाउट है या फिर कुछ रहेगा आप पूछ नहीं पाए, मुझे जस्ट टू मुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इसके वजह से। See, last point when you have mentioned this about this wall, I was a bit confused with the terminology. ओके, I believe it should be modulating, right? Modulating. ऑन ऑफ भी हो सकता है सर, ऑन ऑफ भी हो सकता है, ऑन ऑफ भी हो सकता है। Okay. First of all, let me correct you here. Walls should be placed in both supply and return. वो आइसोलेशन वॉल के सर। Right. Exactly. Hmm. Since that's the reason why I particularly mentioned it should be a modulating wall. Right. We should be controlled. राइट We should be controlled by BMS system. राइट सर, Right. राइट। And secondly, as you have mentioned that the oxidation takes place. It's not the oxidation. It's the it's because of the gap in the or the vacuum that is created Right. due to the lack of fluid in the राइट coil. राइट 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 Okay. Right. That's the reason why it has to be placed on the return leg side. Right. Sorry, return leg side. रिटर्न लाइन साइड, राइट। Otherwise, from maintenance perspective or from other perspectives, the butterfly walls or the isolating walls, they have to be provided on both the sides. ओके, बट दैट इज अगेन मतलब एक छोटा सा इसमें ऐड करना होगा चीज। क्या मैं यहाँ पे फिर से आइसोलेशन वॉल मेंटेनेंस पर्पस के लिए ऐड करना उचित रहेगा? You have to. You have to. How will you maintain your coils? My dear sir, Agar- suppose tomorrow if you have to replace that coil, then what is the option with you? हमको सिंपली क्या करना पड़ेगा सर, उस टाइम पे ये वॉल को ओपन करना पड़ेगा। नॉर्मली ओपन करने के बाद ये पूरा का पूरा कॉइल एम्प्टी करना पड़ेगा एंड एम्प्टी करने के बाद ये कॉइल रिप्लेस करना पड़ेगा। उसका और एक रीजन मैं बताता हूँ, वो हम चिल्ड वाटर लाइन में करते हैं आइसोलेशन के लिए, ठीक है, सो दैट कि एयर साइड का जितना भी वाटर है वो घूमता रहे। मान रहे हो आप? एक लूप होता है एयर साइड एंड चिल वाटर साइड जो कि कनेक्ट करता है, राइट। मान लीजिए फॉर एग्जांपल और बीच में बाईपास लाइन भी होती है, शायद आपने सुना होगा चिल वाटर साइड। तो अगर मैं आइसोलेशन चिलर आइसोलेशन वॉल यूज करूं और वो आइसोलेशन वॉल तभी यूज होगा जब मेरे पास में स्टैंड बाय यूनिट्स है सर, प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। अगर मेरे पास Can you please put it on this? यस मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक रूम के लिए एक ही HU है, ठीक है, राइट, स्टैंड बाय नहीं है। मैं HU की भी बात करूंगा बाद में, फिर मैं जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ वो मैं करता हूँ। अगर HU है, HU का मुझे कॉइल मेंटेन करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है, तो पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे आइसोलेशन वॉल तो दे नहीं सकता, क्योंकि दैट विल एड द कॉस्ट।
सबसे पहले कि एक जस्ट मेंटेनेंस पर्पस के लिए अगर किसी कस्टमर को मैं बोलूं कि सर आपको 1 लाख रुपए के वॉल डालने पड़ेंगे यहाँ पे, सो दैट विल नॉट एक्सेप्टेड। सबसे पहले तो नहीं करेगा अलाउ। आप कुछ भी कर लो, नहीं करना है मुझे, आप खोल दो वो वॉल को, पानी ड्रेन आउट कर लो और आप करो। दैट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट कि आप एचू के कॉइल को कैसे कर सकते हो मेंटेन, ठीक है। अब मैं आता हूँ So if you have multiple AHUs connected to the same line, No, let him complete first. Let him complete. We should allow him. राइट। अगर एक ही लाइन पे करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि इसी लाइन पे मैं सामने एक एचयू कनेक्ट करता हूँ, तो देन मुझे वहां पे आइसोलेशन वॉल डालनी that's the point why I saw that. यस। और वही मैं आगे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ सर। अब मैंने क्या बोला सर कि एक ही लाइन या फिर एक ही लाइन पे मल्टीपल एचयूज कनेक्टेड है, बट एक रूम के लिए मल्टीपल एचयूज कनेक्ट नहीं हो सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड, Right, राइट? 1 sec, sir. Should I come there? यस सर, प्लेजर सर। Thank you very much. I couldn't able to erase it thoroughly. Apologies for that. This is my header line, right? This is my HU, this is my HU, this is my HU. This is feed into various rooms, right? Let us assume that this is my supply and this is my return. Right, sir? Till here everything is clear? Now I say that you have to provide isolation walls here. And you say that on supplier side it is not required. ठीक है? Tomorrow, if you want to replace this coil, you have to drain out this water. Right. You have to drain out the water of the intensity. Can the customer afford to take that much of shutdown? No. If it is a hospital or if it is a hotel, can he afford to take this much of risk? No. Okay. You say that it is expensive, Right. right? How Right. much expensive? How much it will cost? 20,000, 30,000, Right. 40,000? Right. And suppose if he takes the shutdown, the owner or the property owner, it will cost him in lakhs. It will cost him in lakhs. This is the project economics. This is what I want to make everyone understand. तो कौन सा सस्ता है सर? दोनों आप बोल सस्ता रहे है। हो। हाँ, दोनों सस्ता है। थैंक यू। सही है, सही है। So again, this is a new learning and a good one, right? So, ma'am, word of thanks, please. Thank you, because it was a very interesting session and very energetic. I think everyone enjoyed the session. Yes, And yes. we look forward to more session from you. And thank you all from Ishran Pro chapter for attending this session. And hope we improve our attendance day by day with this interesting session. So what I propose is, like, members should come forward and propose sessions, and then I think the involvement will be more and we can have better sessions in future. Exactly. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.